हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं बैंक फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। इट मीन्स फर्म वांट्स टू टेक लोन फॉर वर्किंग कैपिटल विच इज अवेलेबल फ्रॉम ए बैंक। You can see there are two approaches. Number one is margin approach and second is Tangen committee approach. So first let us see margin approach. What happens? So first we have margin approach. So in this case, what happens? Bank will give us advance against different items of current assets. So bank provides advance. Advance means we can say loan against different current assets. But bank will not provide 100% advance. Bank also asks to firm to invest some its own funds, which is called margin. But bank does not provide 100% advance. It means firm also has to invest some of its own funds. It means for different items of current assets, bank is not giving 100% advance, but firm also has to invest some of its own funds. And these own funds, this is called margin money. This margin money, it can be 10%, 20%, 30%. So normally it is in between 10% to 30%. It means if margin money 10%, which means firm has to invest its own funds up to 10%, balance 90% will be provided by bank as advance. So let us see big example. Suppose you are given different current assets. तो आपकी जो मेजर करंट एसेट्स हैं, नंबर वन इज अवर इन्वेंट्री, then we have debtors, then we have cash balance, then we have current liabilities, these are creditors. Suppose our inventory is 50,000, so debtors are 30,000 and the cash is 20,000, and we have also arranged some creditors. Creditors are suppose 15,000. अब आपको एक मार्जिन मनी मेंशन की होगी, मार्जिन मनी इज गिवन, which means for different items of current assets, how much own funds to be invested by firm. Suppose in case of inventory, margin money is our 20%, and in case of debtors, it is 25%, and in case of cash, it is 100%. So now you can determine what will be bank finance for working capital which is available in this case. So it means first we have to determine amount of bank finance which is available against current assets. This we can calculate for different items of current assets. First we have inventory. तो इन्वेंट्री के अगेंस्ट आपको बैंक फाइनेंस मिल जाएगा. Since margin money is 20%, it means bank is giving us advance 80% of amount is 50,000. So you will get bank finance 40,000. Then we have debtors. Debtors are 30,000. तो उसके अगेंस्ट आपको एडवांस मिल जाएगा 75% of 30,000, which is coming 22,500. Because our own funds are 25%. Cash में आपके 100% margin money है. It means no bank finance is available. In cash it is 0%. Because 100% firm has to invest its own funds. तो इसका टोटल कीजिए, ये आपको बैंक से फाइनेंस मिल सकता है वर्किंग कैपिटल के लिए 62,500. अब आप शो कर सकते हैं कि जो डिफरेंट करंट एसेट्स हैं आपकी टोटल लाइक 1 लाख, उसकी फाइनेंसिंग हम किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं. Let us see financing of current assets in case of margin approach. अब देखिए टोटल करंट एसेट्स हैं आपकी 1 लाख रुपीज़. टोटल करंट एसेट्स आर रुपीज़ 1 लाख. अब इसकी फाइनेंसिंग हो रही है. एक देखो आपको बैंक से फाइनेंस मिल रहा है 62,500. तो यू आर गेटिंग लोन फ्रॉम बैंक विच इज कॉल्ड बैंक फाइनेंस 62,500. फिर आपके कुछ अपने क्रेडिटर्स हैं जो आपको फैसिलिटी दे रहे हैं, क्रेडिटर. इसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस लाइबिलिटी. इट मीन्स सेकंड फाइनेंस वी हैव क्रेडिटर्स. इनसे आपको मिल रहा है 15,000 का बेनिफिट. दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस लाइबिलिटी.
स्पॉन्टेनियस होती है जो ऑटोमेटिकली बिजनेस ट्रांजेक्शन से अराइज हो जाती है फैसिलिटी, जैसे कि क्रेडिटर से। इसमें अब जो बैलेंस रह जाएगा आपका 1 लाख माइनस 62,500 एंड माइनस 15,000, वो आपको अपने फंड से इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो दीज आर ओन फंड्स ऑफ फर्म। तो फर्म के ओन फंड्स होते हैं, फर्म कैन इशू शेयर कैपिटल, फर्म कैन इशू डिबेंचर, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स। दीज आर लॉन्ग टर्म फंड्स। अब देखिए इन सबका टोटल बन रहा है आपका 77,500, बैलेंस है जो 22,500 इज अवर ओन लॉन्ग टर्म फंड्स। तो नेक्स्ट देखते हैं अब टंगन कमेटी अप्रोच। तो सेकंड अप्रोच is टंगन कमेटी अप्रोच। लेट अस से इन दिस केस, so this approach it has provided so 3 different methods of bank finance। तो इस टंगन कमेटी अप्रोच ने 3 मेथड्स प्रिस्क्राइब किए हैं विच आर सिमिलर टू आवर डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ बैंक फाइनेंस। सो फर्स्ट वन इज कॉल्ड आवर एग्रेसिव अप्रोच, देन वी हैव hedging approach and then we have conservative approach। एग्रेसिव में आपको मैक्सिमम बैंक से फाइनेंस मिल जाएगा फॉर वर्किंग कैपिटल। सो इन दिस अप्रोच वी गेट मैक्सिमम एडवांस और मैक्सिमम अमाउंट। तो इट मीन्स जो बैंक फाइनेंस आप ले रहे हैं वर्किंग कैपिटल के लिए, दिस इज आल्सो करंट लायबिलिटी, व्हेन करंट लायबिलिटीज आर हाई, सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन टू करंट रेशो, so current ratio will be low। Current ratio low means our liquidity risk will be high, so therefore it is an aggressive approach that we are ready to bear high risk। So in this firm bears high risk। Then we have a medium approach, moderate approach, hedging approach, it is also called moderate approach। उसमें जो आपको फाइनेंस मिलेगा बैंक से that will be our moderate amount। But in conservative approach we get the lowest amount of bank finance। इसमें जब लोएस्ट अमाउंट आपको मिलेगा बैंक फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल, इसमें करंट लायबिलिटी विल बी लो, करंट रेशो विल बी हाई। तो उस केस में आपकी करंट रेशो जो है दैट विल बी हाई। सो इट मीन्स लिक्विडिटी पोजीशन इज सेटिस्फैक्ट्री, सो रिस्क विल बी लो। सो हेयर वी हैव लो रिस्क। एक मॉडर्न जो आपकी है मॉडरेट अप्रोच है, तो इस मीन्स इसमें आपकी जो करंट रेशो है ये आपकी नॉर्मल होगी एंड जो रिस्क इज आल्सो नॉर्मल। देखिए इसमें हम बैंक फाइनेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना आपको एडवांस मिलेगा एज पर दीज अप्रोचेज। तो इसके लिए आपको डिफरेंट आइटम्स मिलेंगी। देखो एक आपको मिलेगी टोटल करंट एसेट्स, लेट अस से शो किसी की CA करंट एसेट्स, देन यू आर गिवन करंट लायबिलिटीज। इट मीन्स these are creditors and outstanding expenses which are called spontaneous liabilities। Then we also have core current assets, one more item is CCA। This is core current assets। core current assets होते हैं जो परमानेंट करंट एसेट्स हैं। परमानेंट करंट एसेट्स मीन्स इतने मिनिमम फंड्स को आपको इन्वेस्ट होने ही हैं करंट एसेट्स में। तो अब देखें तीनों मेथड्स में आपको कितना बैंक से फाइनेंस मिल रहा है, तो उसको हम ये भी कहते हैं मैक्सिमम परमिजिबल बैंक फाइनेंस एज पर इंडियन कमेटी अप्रोच एंड फॉर वर्किंग कैपिटल। तो शॉर्ट में हम इसको कह सकते हैं MPP। तो इसमें तीनों मेथड्स में आप देखिए मैक्सिमम परमिजिबल बैंक फाइनेंस, हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड विच इज फॉर वर्किंग कैपिटल। फर्स्ट अप्रोच में दिस इज अवेलेबल 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इट मीन्स जो आपका वर्किंग कैपिटल है उसका 75% आपको एडवांस मिल जाएगा। सेकंड मेथड में आपका जो है मैक्सिमम परमिजिबल बैंक फाइनेंस इज इक्वल टू 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो सेकंड मेथड में आपको एडवांस मिलेगा, पहले 75% करेंगे हम करंट एसेट्स का, उसमें से करंट लायबिलिटीज़ आपकी माइनस हो जाएंगी। और थर्ड मेथड में थर्ड अप्रोच में which is called conservative approach, maximum permissible बैंक फाइनेंस इज इक्वल टू 75% ऑफ। अब करंट एसेट्स में से आप कोर करंट एसेट्स में माइनस कर लीजिए। इसमें जो परमानेंट करंट एसेट्स है उसके लिए बैंक आपको कोई फाइनेंस नहीं देगा, कोई एडवांस नहीं देगा। जो बैलेंस है उसका मिलेगा 75% माइनस करंट लायबिलिटीज़।
let us now discuss some examples to explain the concept of bank finance working capital. So first we have example number 3. इसमें देखिए आपको डाटा मेंशन किया है XYZ Limited has a flowing position of current assets and current liabilities as on 31st March and to provide advance against these assets the bank has fixed margin money for each asset. आपको डिफरेंट आइटम्स दिए देखो करंट एसेट्स की इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स रिसीवेबल कैश बैलेंसेज एंड अकाउंट्स पेबल अमाउंट्स दिए हैं और उनकी मार्जिन मनी आपको दी है 30%, 25%, 20, 25 एंड 100%. तो आपको डिटरमिन करना है हाउ मच बैंक फाइनेंस यू विल गेट एंड हाउ करंट एसेट्स आर फाइनेंस्ड. तो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बैंक फाइनेंस which is available for current assets. उसके स्टेटमेंट ड्रॉ कर रखे हैं. करंट एसेट्स आपको दिए हैं. सो करंट एसेट्स आर अवर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ WIP, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यानी कि डेटर्स एंड इट इज कैश बैलेंस. तो उनके अमाउंट्स आपको दिए हैं रुपीज़ में. रॉ मटेरियल स्टॉक की 20,000, 30,000 WIP, फिनिश गुड्स स्टॉक की 50,000, डेटर्स आर 80,000, कैश बैलेंस है जो 20,000. तो बट ये मार्जिन मनी वो आपको मेंशन की है परसेंटेज में. मार्जिन मनी वही है क्योंकि 30% यानी कि 25%, 20% यानी 25% एंड 100%. मार्जिन मनी मीन्स ओन फंड से कोई भी इन्वेस्टेड है फर्म. बैलेंस आपको मिल जाएगा बैंक फाइनेंस. So what is the amount of bank finance? So this will get in rupees. It is 70%, 14,000. It is 75%, 22,500. यानी कि 80%, 40,000. यानी कि 75%, 60,000. और कैश के केस में कोई आपको बैंक फाइनेंस नहीं मिलेगा बिकॉज मार्जिन मीज 100%. It is 0. So this will be total bank finance and these are total current assets. Rupees 2 lakhs. So against 2 lakh of current assets you are getting bank finance. This is 14 plus 22,500 plus 40 plus 60 1 lakh, 136,500. अब आप शो कर सकते हैं कि डिफरेंट जो करंट एसेट्स हैं वो किस तरीके से फाइनेंस हो रही हैं आपकी. लेट अस शो फाइनेंसिंग ऑफ करंट एसेट्स ऑफ रुपीज 2 lakhs. उसकी फाइनेंसिंग है. फर्स्ट यू आर गेटिंग बैंक फाइनेंस. आपको बैंक से फाइनेंस मिल रहा है रुपीज़ 136,500. फिर आपने अपने कुछ क्रेडिटर्स अरेंज किए हैं विच इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस लाइबिलिटीज़. स्पॉन्टेनियस लाइबिलिटीज़ आर क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स मीन्स अकाउंट्स पेबल्स. ये आपको दिए हैं 40,000. तो बैलेंस आपको अपने फंड्स अरेंज करने पड़ेंगे विच आर लॉन्ग टर्म फंड्स. देन वी हैव ओन फंड्स विच आर आल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म फंड्स. तो दिस विल बी रुपीज़ 2 lakhs की आपकी टोटल करंट एसेट्स हैं माइनस 176,500. So own funds are 23,500. So next let us see one more example to determine our bank finance through Tandem Committee. So in this example data given is you have to determine the amount of maximum permissible bank finance under different methods of Tandem Committee and following data ये given. करंट एसेट्स आपको मेंशन की हैं. तो डाटा है आपके पास. करंट एसेट्स रुपीज़ आपको मेंशन किए हैं लैक्स में. तो करंट एसेट्स आर 1,000 lakhs. देन कोर करंट एसेट्स आपको मेंशन किए हैं 200 एंड करंट लाइबिलिटीज़ आपको मेंशन की हैं जिस इज 250. तो यू हैव टू डिटरमिन व्हाट इज मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस एज पर टेंडर कमेटी. तो टेंडर कमेटी ने 3 अप्रोचेज मेंशन की हैं विच आर आल्सो कॉल्ड एज 3 मेथड्स. लेट अस सी मेथड नंबर 1. तो फर्स्ट मेथड में आपको मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस मिलेगा 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज विच इज 75% ऑफ करंट एसेट्स हैं आपकी 1,000 माइनस करंट लाइबिलिटीज हैं 250. रुपीज़ आपके हैं लैक्स में. तो दिस वी आर गेटिंग 750 इंटू 75%, 562.5 lakh. Then we have a second method.
तो सेकंड मेथड में आपको मैक्सिमम परमिजिबल बैंक फाइनेंस अवेलेबल है 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। इसमें हम करेंगे 75% करंट एसेट्स विच इज 1000 और माइनस कीजिए करंट लाइबिलिटीज 250। इट इज 750 माइनस दिस, तो आपको एडवांस मिलेगा 500 लैक्स। देन वी हैव मेथड नंबर 3, इसमें आपको मैक्सिमम पर बैंक फाइनेंस मिल सकता है 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस कोर करंट एसेट्स, और इसमें से माइनस कीजिए करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट्स हैं आपकी 1000, कोर करंट एसेट्स आर 200 माइनस करंट लाइबिलिटीज आर 250। So this will be 800 into 75% माइनस 250, 350 आपको बैंक से फाइनेंस मिल जाएगा इनके साथ। तो देखिए फर्स्ट मेथड की कहा एग्रेसिव अप्रोच जिसमें आपको मैक्सिमम एडवांस मिल रहा है, सेकंड की मॉडरेट अप्रोच जिसमें नॉर्मल एडवांस मिल रहा है, थर्ड वाली की कंजर्वेटिव अप्रोच जिसमें आपको सबसे कम एडवांस मिल रहा है। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया बैंक फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल एंड देयर वर टू अप्रोचेज। नंबर 1 वाज मार्जिन अप्रोच एंड सेकंड अप्रोच वाज कंजन कमेटी रिपोर्ट। तो फर्दर हम एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ऑन वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के फर्दर लेक्चर में। थैंक यू।